খুলুমবাই নমস্কাৰ। আজিৰ এই ষ্টাৰ্টআপ শ্ব'ত আমি আকৌ এটা নতুন গেষ্ট লৈ আমি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ। আজি ভোগালী বিহুৰ বতৰত আজিৰ শ্ব'টোত আমি এজন স্পেচিয়েল গেষ্ট মাতি আনিছোঁ আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত, আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত। আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত হ'ব। মই জানো আজি যিটো আমি খণ্ড কৰিব গৈ আছোঁ, এপিছ'ডত আমি যিজন ব্যক্তিক আমি মাতি আনিছোঁ, হি ইজ এ ৰিনাউণ্ড গাইনিকলজিষ্ট ইন কোকৰাঝাৰ। তেখেতে আমাৰ কোকৰাঝাৰ RNB চিভিল হস্পিটেলৰ এজন স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ হয় আৰু তেখেতৰ আৰু এটা মানে যোগ্যতা আছে বা এটা কোৱালিফিকেশ্যন আছে বা তেখেতৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। সেইটো হ'ল কি তেখেত চাৰ্টিফাইড হেল্থ কোচো হয়। লগতে তেখেতৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিলো বহুত আমি দেখা পাইছোঁ। চ' আজিৰ এই ভোগালী বিহুৰ বতৰত আজিৰ এই এপিছ'ডত আমি স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ জুনিকাৰ আলী ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। তো ডক্টৰ ছাৰ, আপুনি আজি আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ত এই ভোগালী বিহু বতৰত আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ত অহাৰ কাৰণে বিশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত বেচিকেলি আমি বিচাৰোঁ এনেকুৱা য'ত নেকি নতুন আইডিয়া, নতুন টেকন'লজি, নতুন বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এইবিলাক বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। তো ডক্টৰ ছাৰ, আপোনাৰ বিষয়ে যিটো আমি জানো, আপোনাৰ এতিয়া এজন ৰিনাউণ্ড গাইনিকলজিষ্ট হিচাপে আপুনি কোকৰাঝাৰত অলৰেডি প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে। লগতে আপুনি এজন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ স্কিলো আমি দেখা পাইছোঁ। আপুনি বিভিন্ন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ আপুনি কাম কৰি আছে। লগতে আপুনি ৰিচেণ্টলি যিটো আমি গম পালোঁ যে আমি দেখিছোঁ, শুনিছোঁ, প্লাছ আমি গম পাইছোঁ যে ইউ আৰ বিং এজ এ ডক্টৰ চাৰ্টিফাইড কোচ হয় আপুনি। তো এইটো আমি বিষয়ে কথা পাতিম, কিয় কৰিছে, কি আমাৰ মানে বেনিফিটছ আহিব হেল্থৰ কাৰণে। তাৰ আগতে আপোনাক মই অলপ আপোনাৰ বিষয়ে অলপ আপোনাৰ ফালৰ পৰা জানিব বিচাৰি আছোঁ। আপোনাৰ অলপ স্পেচিয়েল आपका जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन आप देना चाहेंगे आपका बारे में। নমস্কাৰ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল হেপী বিহু টু অল অফ ইউ। আমাৰ বিহু আহি আছে, চবকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু মোৰ জীৱন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মোৰ জন্ম ইয়াতে, মই ইয়াতে স্কুলিং কৰিছোঁ আৰু মোৰ দেউতাৰ প্ৰফেচাৰ আছিলে। তো একচুৱেলি আমি যোনটো ঘৰত থাকি লৈ ঘৰৰ পৰাই মই আজি শ্বুটিং কৰি আছোঁ, যোনটো মোৰ এটা খুব ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে স্কুলিং কৰাৰ পিছত মই মেডিকেল পঢ়িব গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই অহাৰ পিছৰ পৰা মই প্ৰথম আমাৰ চিভিল হস্পিটেলত জইন কৰিলোঁ। তো এজ এ গাইনকলজিষ্ট মই নিজৰ ছাৰ্ভিচখিনি সমাজক দি আছিলোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মই কিছুমান গেপছ দেখা পালোঁ, যেনেকৈ এজন পেচেণ্ট বা এজন যদি মহিলাগৰাকী হওক বা যিকোনো এটা পেচেণ্ট যেতিয়া আমাৰ তাত আহে, তেতিয়া বহুত ধৰণৰ কিছুমান বস্তু সুধিবৰ কাৰণে আহে, বহুত ধৰণৰ বস্তু জানিব বিচাৰে। যেনেকৈ আমি খালি অহাৰ লগে লগে কথাখিনি সুধোঁ, প্ৰব্লেম কি এইটো সুধোঁ আৰু লগে লগে আমি মেডিচিনটো দি দিওঁ, হয়, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে এজন হেল্ডি হ'বৰ কাৰণে খালি মেডিচিন দি পেলাইহে আমি বেমাৰটোক মাৰিব নোৱাৰোঁ। হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান পিলাৰ্ছ থাকে, যিটো আমি পিলাৰ্ছ অফ হেল্থ বুলি কওঁ। হয়, এই পিলাৰ্ছখিনি আমি ঠিক কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত কেনেকৈ আপোনাৰ এটা হ'ল যে কেনেকৈ আমি শুই থাকোঁ, আমি আমাৰ শ্লিপ কোৱালিটি কেনেকুৱা, আমি কি খাদ্য খাই আছোঁ, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেল আমাৰ কেনেকুৱা, আমি এনভাইৰনমেণ্টটো আমাৰ কেনেকুৱা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু থাকে, যিখিনি মই দেখা পাইছোঁ যে এজন ডক্টৰে আপোনাৰ কেতিয়াও নিজৰ পেচেণ্ট বা নিজৰ ক্লাইণ্টক কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। হয়, তো এই উদ্দেশ্য লৈ মই ভাবিছোঁ যে যিহেতু মই গাইনকলজিষ্ট হয় আৰু মই নিজৰ ছাৰ্ভিচটো, মেডিকেল ছাৰ্ভিচটো মই দি আছোঁ, কিন্তু এবাৰ অভাৰঅল যদি মই হেল্থ এটা মানুহৰ ঠিক কৰিব বিচাৰোঁ, তেন্তে মই বাকী পিলাৰ্ছখিনিতো মই জোৰ দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মোৰ এটা জিম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। মই নাম দিছিলোঁ মেডিকেল জিম। হয়, তো মেডিকেল জিমৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে যে মই এক্সাৰচাইজ থ্ৰু দি পেলাই কিছুমান যোনটো লাইফষ্টাইল বেমাৰ আছে আমাৰ, এই বেমাৰখিনি আমি ৰিভাৰ্চ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। যেনেকৈ ডায়েবেটিছ, PCOD, হাইপাৰ টেনশ্যন বা কাৰোবাৰ কলেষ্ট্ৰল বেছি থাকে, হয়, তেনেকুৱা আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। হয়, মানে आप जो बोल रहे हैं कि इसको मेडिसिन के अलावा हेल्थ जो आप एक्सरसाइज हो, जिम हो, कैसे हम लोग कर सकते हैं। राइट, बहुत अच्छा आपका मतलब आइडिया रहा आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग ने देखा कि जैसे मैंने एक मेडिकल जिम खोल दिया, खोलने के बाद भी मैं पेशेंट या मेरे क्लाइंट जो होते हैं जिसको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको मैं ट्राई करता हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा, तो मेरे यहाँ तो आपको मेडिसिन्स और दवाई वो सब मिलेगा, लेकिन साथ में आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप हेल्दी रहेंगे, तभी आपका मेडिसिन्स भी काम करेगा। सिर्फ ओनली मेडिसिन से आप कभी भी बीमार ठीक नहीं कर सकते। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे आपका मेडिकल जिम खोला है
और मैं थैंकफुल हूँ पूरा मैंने हम लोग के असम के लोगों के और कोकराझार के लोगों के कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया इसमें। अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोगों ने हम लोग ने चेंज किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मेरे दिल में और कुछ करने का मन कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि 2 पिलर्स तो मैंने ठीक कर दिया, लेकिन और 4 पिलर्स जो हेल्थ का है उसको मुझे काम करना है। तो इसके लिए मैंने हेल्थ कोचिंग का एक सर्टिफाइड कोच किया है, ट्रेनिंग किया है, एक ट्रेनिंग किया है। और ट्रेनिंग करने के बाद अभी मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन गिव ए कंप्लीट ओवरऑल सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। तो आपका जो हेल्थ का जितना प्रॉब्लम्स है, जैसे आप अगर PCOD से सफ़रिंग है, आप अगर कोई स्किन इशू से सफ़रिंग है, आप डायबिटीज़ से हैं, आप अगर हाइपरटेंशन है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप घटाना चाहते हैं, तो इस तरह से आपका कोई भी इश्यूज़ है जो कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ को ठीक करके 3 मंथ्स का एक कोर्स होता है, काउंसलिंग होता है, कोचिंग होता है, जिससे हम लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस सब के लिए आपको अभी जो हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें मेन प्रॉब्लम है कि हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हम लोग का हो रहा है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में मेन है कि हम लोग को बीमारी को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग अगर बीमारी को घटाना चाहते हैं तो हम लोग को आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तो उसी के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो सर आपने बहुत बढ़िया से बताया कि आपने नया एक इनिशिएटिव लेके अपना जो सर्टिफिकेट अपनी हेल्थ कोचिंग का की है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेनिफिशियली रहेगा हमारे इलाके के लिए। तो आपने अभी बताया कि 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ, तो उसमें आपका कि इसमें क्या क्या आता है आपका? तो 6 पिलर्स ऑफ हेल्थ जो हम लोग हेल्थ कोचिंग में देते हैं, उसमें हम लोग पहले देते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, हाउ यू ईट, ठीक है, व्हाट यू ईट, आप क्या खाते हैं। सेकेंड पिलर होता है कि हाउ यू ईट, आप किस तरह से उसको खाते हैं। खाने के टेक्निक के ऊपर भी आपका हेल्थ का इश्यूज रिलेटेड है, तो उसके ऊपर भी आपको कोचिंग दिया जाता है। थर्ड होता है कि आपका इमोशंस कैसा है, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, आप हमेशा डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी लेवल आपका कैसा है, उसके ऊपर भी निर्भर होता है। फोर्थ होता है आपका एक्टिविटी, मूवमेंट और एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर भी होगा। जो फिफ्थ होता है वो होता है आपका स्लीप। तो देखा गया है कि मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज जो होता है वो हम लोग के क्वालिटी ऑफ स्लीप के नहीं होने की वजह से होता है। तो अगर हम लोग ठीक से अच्छे से 7 to 8 आवर्स नहीं सोएंगे और हम लोग का क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग का हेल्थ इशू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और 6 जो पिलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट, कि आप किस परिवेश में रह रहे हैं, आपका परिवेश कैसा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लेजी वाले लोगों के साथ ज़्यादा है कि एक्टिव वाले लोगों के साथ ज़्यादा है, ठीक है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा हैं कि आप नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा है। तो दीज आर द 6 पिलर्स। तो उसमें हम लोग कोचिंग करके हर पिलर में आपको चेंज करने का ट्राई करते हैं ताकि आपका लाइफस्टाइल डिजीजेस कम हो सके। तो जो 6 पिलर जो आपने बताया उसमें आपका व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, ये सब पूरा आ रहा है। तो इसमें आप लोग मैं आपको देखता हूँ कुछ आप रील्स वगैरह छोड़ते हैं आपका, उसमें देखा जाता है कि आप पानी पीने का तरीका आप बताते हैं। तो एक्चुअली पानी तो ऐसा है कि हम लोग शुरू से ही हम लोग पीते रहते हैं, तो ये तो ऐसा नहीं कि नया चीज़ है। तो ये पानी का तरीका अभी तक हम लोगों को मतलब बहुत सारा आदमी को पता नहीं कि कैसे पानी पीना चाहिए। यस सो बहुत सारा कन्फ्यूजन है हम लोगों का बीच। इतना मतलब पानी इतना ज़रूरी चीज़ है, हम लोग डेली पीते हैं 2-3 लीटर, फिर भी उसका तरीका ठीक से मालूम नहीं होता है। तो जैसे आपका वीडियो देखते हैं हम लोग, आपका जो सेशन देखते हैं, या फिर जो हम लोग जानते हैं कि पानी का भी एक रूल्स है, किसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? तो देखिए हम लोग का जो बॉडी है वो मैक्सिमम 80 to 85% पानी से बना हुआ है। ठीक है, और पानी हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा गया है जैसे फूड इज़ मेडिसिन बोलते हैं, हाँ, तो वाटर इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेडिसिन। अगर आप ठीक तरह का पानी पी रहे हैं और आपको जितना पानी पीना है उतना अगर पानी पी रहे हैं और सही तरीके से पी रहे हैं तो बहुत सारी बीमारी आपका ठीक हो जाती है। तो देखा गया है कि आजकल हम लोग पानी जो दौड़ दौड़ के पीते हैं, कभी ऑफिस में खड़े होके पीते हैं, एक ही बार में ढक ढक खा के पी जाते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि पानी को जब हम लोग पिएंगे तो पानी जब हम लोग के पेट में जाएगा, जाने के बाद हम लोग का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो जैसे हम लोग पानी धीरे धीरे पिएंगे तो हम लोग के मुंह में ही जो सलाइवा है वो सलाइवा पानी के साथ मिक्स होकर अंदर जाएंगे, जिसके वजह से हम लोग का पानी भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे। तो हम लोग जल्दी जल्दी पिएंगे तो हम लोग का एब्जॉर्प्शन पानी का अच्छा नहीं होगा। सेकेंड होता है कि पानी पीने के टाइम में हमेशा हम लोग को बैठ के रिलैक्स होकर पानी को पीना है, तभी हम लोग का पानी का जो लाभ होता है वो बॉडी में हम लोग को मिलेगा। थर्ड होता है हम लोग पानी को जितना हो सके +7
पीएच की तरफ पीना चाहिए, जिसमें हम लोग इतना आजकल एल्कालाइन वाटर भी आ रहा है, इस तरह से पीने से देखा गया उसमें कुछ हम लोग का हेल्थ बेनिफिट्स है और कुछ हम लोग को एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है बॉडी में, जिसकी वजह से हम लोग का ऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है और तो आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी हम लोग का काम करते हैं। अच्छा, तो इसलिए पानी पीने को भी कैसे पीना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कब पीना है और कौन सा पानी पीना है वो भी हम लोग के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के आगे पीछे भी पानी पीने का बहुत तरीका है। हाँ। तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि 1 घंटा पहले आप पानी पीजिए खाना खाने से और 1 घंटा बाद आपको पानी पीना है। क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हम लोग खाने के साथ पियेंगे तो हम लोग का गैस्ट्रिक जो जूस होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम लोग फूड लेंगे तो फूड हम लोग का अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि पानी के मैंने बीच में आप थोड़ा सिप्स ऑफ वाटर ले सकते हैं फूड के साथ, लेकिन एकदम पानी कंप्लीट पानी आपको खाने के साथ नहीं लेना है। या तो 1 घंटा पहले लीजिए या फिर 1 घंटा बाद लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि खाने व्हाट वी ईट, जैसे कि हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं 3 बार तो हम लोग हैवी फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, बाद बीच में भी हम लोग स्नैक्स लेते हैं। तो जो व्हाट वी ईट, तो हर मतलब ट्रेडिशनल आदमी का अलग अलग खाना होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हमेशा चावल का ही ज़्यादा रहता है, नॉर्थ में जाएंगे तो आपका रोटी का ज़्यादा रहता है। तो हम लोग प्लेस के वाइज, जैसे कि हम लोग अब बीटीआर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, हम लोग को किस तरह का खाना खाना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए? तो हेल्थ के लिए हम लोग का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, बहुत लोग आपको जिम में जाते हैं या कोई भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, तो उनको बहुत तरह का रिस्ट्रिक्टेड डाइट दिया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड, हाँ, ये आप ये वाला डाइट लीजिए आपका वेट इतना कम हो जाएगा, ये वाला डाइट लीजिए आपका ये बहुत ही हो जाएगा। लेकिन देखा गया है कि उसको आप कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सही में? ठीक है, अगर मैं बचपन से मैं चावल खा रहा हूँ और मुझे कल बोला गया कि आप कल से रोटी खाइए, तो मैं 1 महीना 2 महीना खा सकूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं होगा, मेरा एडजस्ट नहीं होगा, तो मैं लाइफ लॉन्ग सस्टेन नहीं कर सकता। तो डाइट हम लोग का ऐसा होना चाहिए जो हम लोग खाने के टाइम में मुझे आनंद मिले, प्लेजर मिले, जिसमें मुझे न्यूट्रिशन भी अच्छा मिले, जिसमें मेरा जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो सब पूरा मिले और जिसको मैं लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकूँ। ठीक है, तो हेल्थ कोचिंग में हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं कि आप कौन सा डाइट लेंगे और उसी डाइट को हम लोग पोर्शंस को चेंज करते हैं। अच्छा, जैसे आप जो राइस खा रहा है उसको राइस ही देंगे, लेकिन उसके जो हेल्थ गोल है वो गोल को नज़र रखते हैं हम लोग, स्पेसिफाइड उसके हिसाब से उसको कौन सा पोर्शंस बढ़ाना है, कौन सा पोर्शन घटाना है, उसको हम लोग कर दिया जाता है। अच्छा, सेकेंड, हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा एक डाइट बनाए जो वो हम लोग के कोचिंग ख़त्म होने के बाद भी वो लाइफ लॉन्ग ले सके, ताकि वो फिर से वो लाइफस्टाइल डिजीज उसके अंदर ना आए। अच्छा, ठीक। थर्ड है कि उसको हम लोग उसका अगर समझ लो मीठा खाना चाहता है तो इस तरह का मीठा ऑप्शंस भी दिया जाएगा, जिसमें वो मीठा भी खा सकेगा, लेकिन उसको वेट भी गेन नहीं होगा और बीमारी भी कम होगी। तो इस तरह का डाइट हम लोग उसको स्पेसिफाइड करते हैं, उसके डाइट में ही हम लोग पोर्शंस को चेंज करते हैं, चेंज करके उसको सस्टेन करके रखने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बता रहा है अभी तक जो बातचीत हो रहा है कि आपने व्हाट वी ईट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर खाने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, खाने का जो आपका रूल्स होगा, अगर मेंटेन करेंगे तो बीमारी होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। जो अभी का जो डिजीज़ है, मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज जो होते हैं, बेसिकली खाने का वजह से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि होते हैं। तो द फूड्स है इज ऑल्सो प्लेइंग इम्पोर्टेंट पार्ट इन गेटिंग आवर बॉडी डिजीज। सर, तो सर एक्चुअली जो अपने जितना भी क्लाइंट आपका है या फिर आपका जब पेशेंट आते हैं, आप तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते ही हो, इसके बाद जो आप जिम के बारे में बोलते हो या फिर जो एक्सरसाइज के बारे में बोलते हो, खाने का तरीका बारे में चेंज करने के बोलते हैं आप, तो इसका रिएक्शन आपको कैसा मिल रहा है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी कैसा है? तो देखिए, अभी धीरे धीरे जो मैं देख रहा हूँ कि हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होता जा रहा है। राइट। तो हम लोग अगर 80-90s के आसपास देखें, अगर हम लोग मूवीज़ में भी देखें, तो मूवीज़ के जो हीरो होते हैं वो हमेशा देखते हैं आपका पेट बड़ा हुआ रहता है, गाल बुल फुला रहता है, गोल गाल रहता है। हाँ, लेकिन आजकल वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। आजकल हर यंग लड़का लड़की हमेशा अपने आप को फिट देखना चाहता है। तो मेरा मैसेज उन लोग का यही होगा कि आपका फिट तो रहना है, लेकिन आपको हेल्दी भी होना है।
आपको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिव डाइट या फिर कुछ भी मेडिसिन, बहुत जगह में देखा हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स या कुछ तरह का ड्रिंक दे के वेट लॉस कराते हैं, स्लिमिंग कराते हैं, लेकिन वो आप लोग के हेल्थ के लिए एकदम हेल्दी नहीं है। तो आप लोग को अपने बॉडी को स्लिम भी रखना है, डिजीज़ फ्री भी रखना है, लेकिन अंदर से हेल्दी भी रखना है। तो रेस्पॉन्स जो मैं यहाँ देखा हूँ कि मैंने जो मेडिकल जिम खोला तो हम लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि इस तरह का जिम में लोग आएंगे कि नहीं, सब लोग सोचेंगे कि ये बीमारी का जिम हो रहा है कोकराझार। तो लेकिन देखा कि इतना रेस्पॉन्स हो गया कि एक टाइम में हम लोग को वहाँ पे एडमिशन बंद करने का कंडीशन हो गया है। तो इस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो कंटिन्यू रेस्पॉन्स बढ़ ही रहा है अभी भी हम लोग का वही। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी आइए, आप लोग हेल्थ कोचिंग लीजिए, साथ में आपके जो बीमारी है लाइफस्टाइल बीमारी को चेंज कीजिए, अपने को भी चेंज कीजिए, औरों को भी चेंज कीजिए। जो आप हेल्थ कोचिंग में सीखेंगे वो आप सोसाइटी में दीजिए, आपके बच्चों को सिखाइए ताकि वो भी बड़े होकर हेल्दी पर्सन बन सके। राइट। सो एक्चुअली आपने जो बता रहा है कि अभी तक जो एक्सेप्टेबिलिटी है इसके बारे में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको। तो सर और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारा आता है कि किसी का वेट 80 kg था, 2 महीने कुछ जूस पिया, आफ्टर दैट उसका 60 किलो हो गया। तो ये ड्रास्टिकल चेंज होता है या फिर जो जूस वगैरह जो न्यूट्रिशन फूड्स लेके जो बॉडी में अपना एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग, वो कितना साइंटिफिकली जस्टिफाई रहता है आपके हिसाब से? हाँ, तो देखा गया है कि बहुत लोग इस तरह का डाइट बनाते हैं। तो हम लोग जो जूस बनाते हैं, जूस में क्या करते हैं, आपका नॉर्मल जो आप खाना खाते हैं पूरा टोटली बंद कर देते हैं और पूरा दिन का वो जूस पिलाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका वेट तो कमेगा लेकिन आपका भीतर में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत तरह का विटामिन्स मिनरल्स आपके बॉडी में जो रहना चाहिए डे टू डे एक्टिविटी के लिए वो आपके नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपका अंदर से बहुत तरह से सेल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो उसको लेके आप अगर कभी भी इस तरह का डाइट ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए। आपको जो भी वेट लॉस करना है, स्लिमिंग करना है, वो आपको हेल्दी डाइट से मिलेगा, ना तो अनहेल्दी डाइट से मिलेगा। और सेकेंड बात, वो डाइट कभी भी आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। और सेकेंड, वो डाइट आप सब छोड़ेंगे, आप डबल पेस से आप फिर से मोटे होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हेल्दी हेल्दी वेट लॉस करना है, ना कि आप कोई भी जूस बूस लेके बहुत जल्दी वेट लॉस कीजिए। तो आपके हिसाब से साइंटिफिकली आपका नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, लेकिन ये आपका आज का ट्रेंड में देखा गया है कि बहुत सारे लोग देखे हम लोगों ने सोशल मीडिया में कि किसी का वेट 80 किलो था, 6 महीने के बाद उनका 60 किलो हो गया है। तो आई थिंक इज नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर गुड नहीं है। हम लोग डॉक्टर्स कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि आपका वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी करता है, जिसकी वजह से आपको उस समय तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन आप 6 महीने 1 साल के बाद अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत तरह से बीमारी और नया बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होगा। तो मैं नेक्स्ट आऊँगा आपके क्वेश्चन पे। आप एज ए गायनेकोलॉजिस्ट यू आर बीइंग रिनाउंड, आपका सब डॉक्टर जूनियर अली बोल के सब पहचानते कि यू आर बीइंग ए सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट। तो कुछ अभी डिजीज़ है, जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि चाइल्डलेस कपल्स, यस, तो इसका भी एक प्रॉब्लम अभी हमारे सोसाइटी में खूब ज़्यादा है। तो उसमें देखा जाता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ किसी में इधर दोनों का ही कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर एक को रहता है। तो उसमें देखा जाता है कि पीओसीडी, क्या बोलते हैं, पीसीओडी, उसका भी एक प्रॉब्लम होता है कि जिसके लिए कि मतलब औरत को माँ बनने के लिए प्रॉब्लम होता है। यस, उसका इलाज आप कैसे करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप चलाने? तो अभी जो मैंने ये हेल्थ कोचिंग या फिर जो मैं जिम का जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में लाया था, उसका मेरा दिमाग में पहले कब आया था, जब मैंने बहुत ज़्यादा पीसीओडी पेशेंट्स को मेरे क्लिनिक में आने का देखा था। जब देखा कि मैंने यंग फीमेल्स जिसका उम्र जस्ट 13-14 ईयर्स है, उन लोग भी आजकल पीसीओडी से सफ़र हो रहे हैं। उन लोग का भी हो रहा है, उन लोग मैंने वेट गेन कर रहे हैं, उनका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रहा है, बहुत सारे मुंह में दाने दाने एक्ने बोलते हैं वो सब स्टार्ट होता है। और जात में जब वही लड़की जात में मैरिड होती हैं तो उन लोग को कॉन्सीव करने में भी बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब बीमारियाँ हम लोग के मदर के टाइम में कभी नहीं थे, उनके जो एज ग्रुप के थे उसमें कभी नहीं थे, लेकिन रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखा गया है कि पीसीओडी पीसीओडी का होने का मतलब कैसे पता चलेगा कि उनको पीसीओडी का हो सकता है, मतलब घर में उनका मतलब? तो पीसीओडी में क्या होता है, पहला तो होता है कि एक होता है उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है पीसीओ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, और एक होता है पीसीओएस और सिंड्रोम। अच्छा, ठीक है, जिसमें होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी में क्या होता है, जो अंडा होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी में जो अंडा फॉर्म होता है, तो 1 महीने में एक ही अंडा
फॉर्म होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, उसी से ओवुलेशन होना चाहिए। ओके। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि अंडा ठीक से बड़ा नहीं होता है और मल्टीपल छोटा छोटा अंडा पूरे ओवरी में दिखाई देता है। अच्छा। जिसकी वजह से उसका ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है। अच्छा। और ओवुलेशन नहीं होने के बाद उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। अच्छा। फीमेल हार्मोन्स बंद होकर उनके बॉडी में मेल तरह का हार्मोन शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जो सिम्टम्स होता है, पहला सिम्टम्स होता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। अच्छा। कभी कभी उनके मेंसेस समय पे आएंगे, कभी कभी डिलेड आएंगे, या कभी कभी एक महीने में 2-3 बार भी आ सकते हैं। अच्छा। सेकेंड होता है कि उसका धीरे धीरे वेट गेन शुरू हो जाता है। वेट गेन तो आप एक्सरसाइज भी करते हैं, खाना भी ठीक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। अच्छा। तो उसमें भी एक देखते हैं। तीसरा होता है कि बहुत तरह के स्किन के इश्यूज आते हैं। स्किन के कहीं कहीं पे नेक पे ऐसे ब्लैक रैशेज आ जाते हैं। कभी कभी एक्ने जो पिंपल्स जैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इन पीसीओडी में। और कभी कभी कुछ स्किन में से मोटा स्किन हो जाता है। वो भी आपका बहुत तरह का लक्षण शुरू हो जाते हैं। अच्छा। साथ में और क्या आता है, हेयर ग्रोथ होता है। हेयर ग्रोथ तो लड़कियों में जैसे जहाँ जहाँ हेयर ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे माउथ के यहाँ, तो ये सब में हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। और जो हेयर आपका जो बाल का वो रहते हैं आपका, वो हेयर कम हो जाता है आपका। अच्छा। ठीक है, स्काल्प का जो हेयर, सर का जो स्काल्प का जो हेयर है वो कम हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह से आप अगर ये 4-5 लक्षण अगर है और साथ में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन है और सोनोग्राफी में अगर हम लोग को पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखा देता है, अच्छा, ठीक है, तो हम लोग उसको कुछ हार्मोनल टेस्ट करने देते हैं। तो हार्मोन टेस्ट में भी अगर पॉलीसिस्टिक दिखाया है, सिंड्रोम दिखा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। अच्छा। तो उसका ट्रीटमेंट या फिर इलाज ओनली मेडिसिन या फिर दूसरा कुछ नहीं, मैं देखा गया है कि अगर हम लोग सिर्फ मेडिसिन देंगे तो उसका कुछ पार्ट ठीक होगा। जैसे अगर मेंस का प्रॉब्लम है तो हम लोग मेंस के लिए मेडिसिन देंगे। लेकिन पीसीओडी का जो प्रोसेस है वो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये बीमारी पहले नहीं था, तो जैसे हम लोग का फॉल्टी लाइफस्टाइल शुरू हो गया है तो धीरे धीरे हम लोग का वो भी स्टार्ट हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम आपका देखा गया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, पहला है कि आपको, तो पीसीओडी में एक है कि जो मेडिसिन्स होता है वो मेडिसिन्स हम लोग का एक पार्ट ही काम करते हैं। जैसे आप लोग को अगर मेंस्ट्रुएशन का कोई इरेगुलरिटी है तो मेडिसिन देके हम लोग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी ठीक कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो प्रोसेस है पीसीओडी का वो चलता रहता है, वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। आपको वेट को आपको मैंने घटाना होगा, या अगर आपको लीन पीसीओएस है तो वेट को आपको आइडियल वेट में लेके जाना होगा। साथ में आपको स्लीप ठीक करना पड़ेगा, आपका जो क्वालिटी स्लीप होना पड़ेगा। डाइट आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको हर दिन 30 to 45 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा। और आपको इमोशंस जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप जिस दिन के लिए जिस दिन में है उसी दिन में रहना पड़ेगा। फ्यूचर के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आप हमेशा एंजियस या आपको एंजाइटी में नहीं रहना है। तो ये सब करने से ही आपको पीसीओडी को आप धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेडिसिन ही लेंगे और बाकी नहीं करेंगे तो पीसीओडी इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये स्टार्ट होगा आपका टीनेज में, धीरे धीरे जाके इनफर्टिलिटी की तरफ भी बढ़ सकता है। अच्छा। तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज है, तो हम लोग को इसको ठीक करना है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। तो मेडिसिन तो रहेगा एज अ पार्ट, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना रहेगा। तो पीसीओडी ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट मैंने एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो आजकल में देखते हैं कि चाइल्डलेस कपल्स के लिए। यस, उसके लिए भी एक समस्या है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओवुलेशन, जो अंडा जो बड़ा होकर जो फटेगा उसमें जो ओवम निकलेगा उसी से प्रेग्नेंट होते हैं। तो अगर ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है तो प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम होता है। और पीसीओडी में मेन प्रॉब्लम वही है कि टाइम पे ओवुलेशन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग मेडिसिन के साथ बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं। ये जो ट्रीटमेंट आपने बताया कि ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपका तरीका है, उसको अगर ठीक तरीके से कोई मतलब फॉलो करेंगे तो आपका हिसाब से वो मतलब रिवर्स कर सकते हैं। कितना टाइम का वो होता है मोटा-मोटी? 6 months to 1 year। 6 months to 1 year। तो एक गुड न्यूज़ यही है कि ये सब जो लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, तो ये सब हम लोग नहीं बनाया है। और एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग अगर उसको कोशिश करें तो हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। विद हमारा गुड लाइफस्टाइल हम लोग रिवर्स कर सकते हैं उसको। तो आज के डेट में देखा गया कि पीपल्स हैज बिकम मोर अवेयर
एंड कॉन्शियस अबाउट द लाइफस्टाइल स्पेशली द हेल्थ, बहुत कॉन्शियस हो गया। एंड जो बीच में हम लोगों का कोविड गया है 2 इयर्स का, उसमें आदमी लोगों का और ज़्यादा कॉन्शियसनेस बढ़ गया है आई थिंक। तो अभी जो जिम है या फिर जो इस तरह का आप लोग जो हेल्थ कोच का आप लोग काम कर रहे हैं, वो आज के डेट में अगर एंटरप्रेन्योरशिप का तरीके से हम लोग देखें, एक फ्लोरिश बिजनेस होने जा रहा है आई थिंक। जो आपने अभी बताया कि आपका अभी फुल हो गया है, यू आर नॉट एबल टू गिव ना मोर एडमिशंस, तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा मतलब करियर की हिसाब से भी हो या फिर बिजनेस के हिसाब से भी हो, किसी भी जगह में भी हो उसको ले सकते, बिकॉज ऑलमोस्ट पीपल्स हैव अंडरस्टूड कि आज के डेट में अगर हमको बढ़िया से रहना है तो हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी को ठीक में रखना है, तो उसको रखने के लिए हमको खाने का तरीका, जिम में जाना, लाइफस्टाइल चेंज करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो एज ए हेल्थ कोच आपने ट्रेनिंग दिया है, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने कहाँ से लिया, उसका इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। अगर हम लोग किसी दूसरे भी भावे सोचे कि नहीं मुझे भी इस तरह का कोच बनना है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि उसका किस तरह का फीचर्स है? ओके, तो हेल्थ कोचिंग जो है ये अभी नया कॉन्सेप्ट ही है, नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिसेंटली जो आपने बोला अभी कि लोग अभी ज़्यादातर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस में सिर्फ जिम जाके या फिर हम लोग एक डाइट लेके कभी भी नहीं कर सकते, हम लोग को बाकी इश्यूज भी देखना होता है। तो इसलिए अगर समझ लीजिए मैं अपना वेट गिराना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, और मैं कर रहा हूँ, डाइट भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पीछे अगर कोई मुझे पुश करने वाला नहीं होगा, ठीक है, तो मैं कुछ महीने तक करूँगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक अपने गोल से अलग हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए तो हेल्थ कोचिंग का जो मेन एम है कि आपके स्टाइल से ही आपको चेंज करना है, अच्छा, ठीक है। तो ये जो एक है कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं और साथ में लोगों आपको पे भी करेंगे, तो इसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। और मैं बोलता हूँ कि आप उसका किसी का भला करके आप पे ले रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है। तो फोर्टकमिंग ये देखा गया है कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही एक ग्रो करने वाला इंडस्ट्री है। तो मैं चाहूँगा कि जो यंग गाइज है या फिर यंग जो लड़के लड़कियाँ वो भी आए, वो भी सीखें, हम लोग से भी सीख सकते हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें भी सीख सकते हैं, सीख के आप भी हेल्थ कोच बनिए और लोगों को लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, उनके लाइफ को चेंज करके उनको आपके हेल्थ को ठीक कीजिए। उनके एक बढ़िया मतलब करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है मतलब हो रहा है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो देखे अभी तक जो मतलब सोशल मीडिया आजकल तो बहुत एक्टिव है, उसमें क्या देखा जाए कि बहुत सारा जो यंग लड़का लड़की है, एक समय में वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, इनकम नहीं कर पाते थे, दे आर नाउ जनरेटिंग गुड रेवेन्यूज फॉर देयर फैमिलीज। तो उसमें देखा गया कि ये जो हेल्थ कोच सेक्टर है, जिम हो गया, हेल्थ रिलेटेड जो एक इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रहा है, एक मतलब फ्यूचरिस्टिक एक अच्छा बिजनेस बन सकता है ये, राइट सर। तो आपने कहाँ से ये कोचिंग? मैं अभी कोचिंग किया हूँ, हम लोग के यहाँ शिवांगी देसाई हेल्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो गुजरात से है, इंटरनेशनली है हम लोग, गुजरात भी है, ऑनलाइन भी देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं। तो मैंने अभी ऑफलाइन कोचिंग किया है और मुझे सर्टिफाइड भी किया गया है। और वहाँ पे बहुत तरह का कोचिंग में हम लोग का जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ, सबको हम लोग को टेस्ट किया जाता है। और हम लोग का स्पीच जो है, हम लोग कैसे बात बनाएंगे, कैसे क्लाइंट को समझाना है, हर चीज़ को एक बारीकी से देखा जाता है। तो उसको लेने के बाद जब मैंने पेशेंट या क्लाइंट को भी बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो मैं लोगों को बोलूँगा कि आप लोग भी आइए, ठीक है, आप लोग भी इस तरह का कोर्स अगर लेना चाहते हैं लीजिए, लेके आप भी अपने लोगों को हेल्थ माने उनके हेल्थ गोल्स को पहुंचने के लिए हेल्प कीजिए। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि अगर जो हेल्थ कोच अगर कोई बनना चाहते हैं तो आपसे भी वो मिल सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली हम लोग जैसे मैंने उस दिन हम लोग प्लान किए थे कि हम लोग वेबिनार स्टार्ट कर सकेंगे या फिर हॉल्स में हम लोग हेल्थ के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें किसी भी कॉलेज में हो, उसमें भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो मेरे फ्यूचर में उस तरह का प्लानिंग है जिसमें मैं बड़े हॉल में एक ही जगह में बहुत लोगों को हेल्थ मैसेज दे सकूँगा। तो बेसिकली जो इस तरह का जो मतलब हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम होता है मेट्रोज़ में या फिर अदर जो बड़ा सिटीज़ में हम लोग ने देखा है कि उसमें ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। एंड आज के डेट में
कोई भी ऑफिशियल्स हो, इधर गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हमेशा एक स्ट्रेस में मतलब रहते हैं, क्योंकि हर जगह में काम बढ़ गया है। सो पीपल्स आर ने एंग्जाइटी मूड में ज़्यादा रहते हैं। तो गवर्नमेंट हो या फिर जो अथॉरिटी रहते हैं प्राइवेट कंपनी का, हमने देखा है कि वो लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का सेशन हो, सो दैट उनका एम्प्लॉय जो है स्ट्रेस फ्री रहे, अपना जो हेल्थ का भी ख्याल रखे। बहुत सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो आपका भी ऐसा कुछ प्लान है क्या, एज ए बीइंग ए हेल्थ कोच, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए गुड एडवाइजर, आपका कुछ प्लानिंग कुछ आपने बताया कि कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ बड़ा सा प्लान आप कुछ कर रहे हैं क्या? हाँ, इस तरह का मैं प्लानिंग सोच रहा हूँ कि अगर समझ लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें इस तरह का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और बहुत लोगों का डायबिटीज़, प्रेशर या ओवरवेट है, तो दे कैन अप्रोच मी। ठीक है, अगर उन लोग चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ जाके स्पीच दूँ हेल्थ के ऊपर, कुछ आप लोग को लाइफस्टाइल का कुछ एडवाइजेस दूँ, कुछ सजेशन दूँ, जिसका आपको काम में भी बेनिफिट होगा, कंपनी को भी बेनिफिट होगा और साथ में इंडिविजुअल्स को भी बेनिफिट होगा। तो इस तरह से कोई अगर मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे अप्रोच कीजिए। आप जब भी बुलाइए, मैं अपना फ्री टाइम में आपको जाके हेल्थ कोचिंग या आपको किसी भी ग्रुप में देने के लिए रेडी हूँ। तो एक अच्छा एक सुझाव आपने दिया है कि आपने एक अच्छा अप्रोच भी रखा है कि कोई भी अगर चाहते हैं कि आपका हेल्थ कोच जो आपने बने हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप यू आर फ्री टू गिव दी फ्री एडवाइजेस टू एनी गैदरिंग, एनी सेमिनार्स। सो ये भी एक मैं পবিচাৰিছে ডক্টৰ জুনিকৰ আলী, হু ইজ এ গাইনেকোলজিষ্ট ইন কোকৰাঝাৰ। তেখেতৰ কথা হ'ল কি যে তেখেত নাও হেল্থ কোচ হিচাপে তেখেতে চাৰ্টিফাইড হৈছে। তেখেতৰ কথা হ'ল কি যে মেডিচিনটো চলি থাকিব, খোৱা লোৱা চলি থাকিব, বাট ইয়াৰ বাহিৰৰ কিছুমান ফেক্টৰ্ছ আছে যিটো নেকি আপোনাৰ গুড হেল্থ বনোৱাৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰে। আৰু তেখেতৰ কোৱা মতে তেখেত বিচাৰিছে যে যদি কোনোবাই ইনষ্টিটিউশ্যনেই হওক বা কোনো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছেই হওক, এনি হোয়ার য'ত নেকি गैदरिंग কৰি তেখেতৰ যিটো एडवाइस দিব পৰা যাব, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डॉक्टर जूनिकर अली से। उनका नंबर या फिर जो डिटेल्स है सब दिया जाएगा। सो दिस इज़ ए गुड थिंग्स आई थिंक यू विल बी डूइंग एंड यू आर डूइंग। तो सर डॉक्टर जूनिकर अली फ्रॉम कोकराझार, स्कूलिंग टू योर टिल योर मेडिसिन डिग्री, सो कहाँ आपका सेटिस्फेक्शन कहाँ तक है? सेटिस्फेक्शन से स्कूल कौन सा स्कूल से किया है, कहाँ तक आपने किया? तो यहाँ से मैं केंद्रीय विद्यालय से पास केंद्रीय विद्यालय से पास हूँ। तो हम लोग जो कोकराझार क्लास 10 के बाद हम लोग यहाँ तब क्लास 11-12 नहीं था। तो हम लोग पहला बेस है जो वहाँ पे एक बोर्ड का एग्जाम दिए हैं क्लास 12 में। सिर्फ 5 लोग ही थे हम लोग, फर्स्ट बेस में थे हम लोग। तो वहाँ पे मैंने टॉप किया था। तो उसके बाद मुझे मेडिकल पढ़ने मिला डिब्रूगढ़ में, फिर मैंने पीजी करने गए सिलचर मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद मेरा जॉब कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ही चल रहा है। तो आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 16 ईयर्स इन कोकराझार। राइट। तो ये जो हेल्थ का जो मुझे जर्नी है, तो ये मेरे 8 से 9 साल पहले से शुरू हुआ है। तो जब मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, जब मैंने दूसरों के जिम में जाना शुरू किया, धीरे धीरे मैं उसके विषय में जानना शुरू किया, लोगों को काउंसिल करना शुरू किया और देखा कि जब मैं मेडिसिन्स के साथ काउंसलिंग भी देता हूँ और कोचिंग के टाइप में उसको समझाता हूँ, तो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो लोग जब मुझे आके थैंक यू बोलते हैं तो मुझे वो बहुत सेटिस्फाइंग बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे मैं इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो जिम का हेल्थ के साथ जो आप चलाते हो, तो किस तरह से मतलब ज़रूरी हो गया आज के डेट में? बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि देखिए अगर आप कमिटेड नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप कमिटेड नहीं रहेंगे तो 1-2 दिन करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। तो जिम में क्या होता है, आप ग्रुप में जाइए। जिम में जब भी बोलता हूँ लोगों को, जब एडमिशन करते हैं मैं बोलता हूँ कि आप ग्रुप में आइए, आप 4-5 फ्रेंड बनाइए, आइए, ताकि एक फ्रेंड जब भी डीमोटिवेट हो दूसरा फ्रेंड इसको पुश करके लेके आएंगे। तो इसलिए आप ग्रुप बना के आइए। और जिम में जब आप आएंगे, आप लोगों को जब दूसरे लोगों को एक्सरसाइज करना देखेंगे, ऑटोमेटिक ही अपना मोटिवेशन आ जाएगा। तो उसको भी आपको कीजिए। हम लोग का जिम का नाम है वन लाइफ फिटनेस, जो आपको SBI कोकराझार टेंगापाड़ा के ऊपर में है। तो उसके ऊपर वाला फ्लोर में है। तो आप लोग आ सकते हैं, आइए, देखिए, ग्रुप बना के आइए और अच्छे से कीजिए। तो अच्छा सुझाव आपने दिया है। तो बेसिकली डॉक्टर जूनिकर अली इज़ ए पैकेज ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ के बारे में अगर कुछ भी आपको मतलब स्पेशली ही इज़ ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड देन ही इज़ ए हेल्थ कोच एंड देन ही इज़ एन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। तो उनका कहना है कि अगर आपको बॉडी को फिट करके रखना है तो मेडिसिन के साथ आपको मेंटली, फिजिकली एंड आपको पूरा
वो करना, कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा हमें, यस right, यस। तो सर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ। आप कुछ नया, कुछ आइडिया आपका, कुछ आप लोगों को बोलना चाहेंगे? हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जैसे मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है, डायबिटिक होने के बाद मुझे आज लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है, मिठाई खाने का हाँ, मन लगा। अच्छा। तो आप जो भी खाना खाए या जो भी आपको बीमारी जिसमें आपको जो चीज़ नहीं खाना चाहिए आपको लेकिन मन कर रहा है खाने के लिए, अच्छा, वो खाने के बाद कभी भी आपको गिल्ट फील नहीं करना है, गिल्टी फील नहीं करना है। ये बहुत ही क्योंकि वो खाने से जितना आपका प्रॉब्लम माने बॉडी में जितना असर पड़ेगा वो गिल्ट फीलिंग आपको ज़्यादा खराब करेगा, ठीक है। इसलिए आप अगर वो खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कौन सा पोर्शन उस दिन में मैं कम करने से मेरा जो कैलोरीज है वो ठीक रहेगा। तो ये एडवाइस मैं देना चाहता हूँ लोगों को, जो बहुत लोगों को देखा हूँ कि हमेशा बोलते हैं मैं डायबिटिक हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा, आप डायबिटिक नहीं है, आपको डायबिटीज़ है, आपका डायबिटीज है, ठीक है। अच्छा। तो ये आपको कहना बंद कीजिए कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, ठीक है। आप डायबिटिक नहीं है, आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ दूसरा है और आप दूसरा है, ठीक है। तो ये आप अंतर करना स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप हैप्पी रहिए, जो भी है कोशिश कीजिए हैप्पी रहिए, नेचर के साथ थोड़ा सा अपने आप को जोड़िए, सनलाइट लीजिए, खाना अच्छा खाइए, बाहर कभी खाइए लेकिन 1-2 दिन खाइए, डेली नहीं खाइए, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, स्लीप को ठीक कीजिए, हेल्दी हैबिट्स बिल्डअप कीजिए धीरे धीरे। तो ऐसे करेंगे तो आप हेल्दी लाइफ जिएंगे और बहुत दिन तक जिएंगे। राइट। तो आपका जो मैसेज एकदम बढ़िया सा रहा कि किसी का डायबिटिक भी है, हाँ। मतलब जो खाना नहीं चाहिए आप खाते हैं तो उसके गिल्ट नहीं फील नहीं करना, उसका रिएक्शन खूब ज़्यादा खराब होता है। अच्छा, सही में। तो इसके अलावा अगर आप समझ लीजिए कि किसी को अगर हेल्थ कोच बनना है तो किस तरह का क्वालिफिकेशन लेके उनको स्टार्ट करना चाहिए, उनका किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? हेल्थ कोच में आपका एक पार्ट है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन के पार्ट में है, तो इसलिए साइंस का अगर बैकग्राउंड आपका है तो इसके लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अच्छा। अगर साइंस का बैकग्राउंड लेके आप हेल्थ कोचिंग में आना चाहते हैं तो ये वेरी गुड है, ये आपको अच्छे से आप सीखिए और इसको एक करियर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अगर आपका इसमें पैशन है लोगों को हेल्प करने के लिए तो ये आपको बिजनेस भी की तरह हो या करियर की तरह हो, आराम से इसको ले सकते हैं। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि कोई भी बैकग्राउंड का हो सकता है लेकिन साइंस वालों से अच्छा रहता है क्योंकि जो बेसिकली जो बॉडी का न्यूट्रिशन, फूड, कार्बोहाइड्रेट सबका थोड़ा सा जानने में इजी होता है। तो साइंस बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट्स होगा पार्ट टाइम के भी हिसाब से ले सकते हैं, फुल टाइम के हिसाब से भी ले सकते हैं क्योंकि आज के डेट में हेल्थ जो मार्केट है मेडिसिन जैसा जा रहा है उसके जैसा पैरेलली जा रहा है, जैसे कि हाँ जैसे कि जिम्स हो गया नाउ, ऐसे भी देखा जाए कि जिम्स तो आजकल गांव में भी शुरू हो गया है। तो जो 10 साल पहले 5 साल पहले या फिर कोरोना से पहले इतना भी नहीं था। तो हेल्थ हैज़ बिकम एन माने इंटीग्रल माने इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ आई थिंक। तो इसके बारे में अगर हम लोग सोचेंगे कि अगर किसी को हेल्थ कोच बनना है, न्यूट्रिशियस मतलब कंसल्टेंट बनना है, इस तरह का बहुत सारा कोर्सेज अभी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो करियर भी स्टार्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर सोचते हैं कि नहीं मुझे करियर नहीं स्टार्ट करना है, मैं सीख के मैं अपना फैमिली को सिखाना चाहता हूँ, तो ये भी एक बढ़िया सा मतलब इतना सारा इन्वेस्टमेंट भी शायद उसमें खर्चा भी नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर खुद से भी ले लेते हो कोचिंग, तो ट्रेनिंग अगर ले लेते हैं तो क्या होता है कि आप अपना फैमिली को सिखा सकते हो, अपने बच्चे को सिखा सकते हो, फ्रेंड्स को सिखा सकते हो, क्लास जो कोलीग होगा उनको सिखा सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए मैंने एक अच्छा एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट आप करियर भी शुरू कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मार्केट होने जा रहा है इन फ्यूचर 5 to 10 years में बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर आपका टीम में अगर 50 to 100 अगर कैंडिडेट आपका टीम में आ जाते हैं तो आई थिंक आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, कंपनी बना सकते हैं जिसमें आप लोगों का जीवन चेंज करेंगे। हाँ, अच्छा काम भी करेंगे, आपको पैसा भी आपको मिलने वाला है, एक करियर आपका बन सकता है मतलब। तो उसमें क्या होगा कि आपका अच्छा भी लगेगा कि नहीं मैं फुल टाइम भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। और मैंने देखा कि आज का जो मैंने हेल्थ कोच का जो मैंने देखा था कि मेरा भी एक दोस्त भी है ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। सो उसका एक ऑफिस है गुवाहाटी में ही है। तो क्या करते हैं ऑनलाइन
1-to-1 करते हैं कभी, yes. या चार्जिंग हायर, Yes. बहुत सारा पैसा वो लोग चार्ज करते हाँ, हैं। तो वो हेल्थ कोचिंग का पार्टी है, हाँ। क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं कि आप घर में बैठे ही हम लोग से कोचिंग भी ले सकते हैं। तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो आप घर में बैठ के भी कोचिंग ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब बेनिफिट रहा। कोई अगर चाहते कि मैं ऑफिस के बाद घर में जाऊंगा, फिर से मुझे आना पड़ेगा है, तो ऑनलाइन की आपका अवेलेबिलिटी अवेलेबल, यस, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। तो उसका भी एक बेनिफिट हम लोग सीख सकते हैं कि आजकल डेट में जो ऑनलाइन सिस्टम जो हो गया ये बहुत फ्री जैसा हो गया, बिकॉज इंटरनेट तो फ्री ही है, तो एवरीबॉडी इज एक्सेसिबल टू द इंटरनेट। तो किसी के पास भी जाइए एंड्रॉइड मोबाइल होता ही है, तो अगर कोई हेल्थ कोच का अगर उनका वहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, ही कैन और ही शी कैन टेक दी ऑनलाइन कोचिंग ऑल्सो, राइट। तो सर एक जो जनरल मैसेज मैं लास्ट पड़ाव में आना चाहूँगा, भोगाली बिहू का सीजन है, आपको मालूम है हमारा असम में स्पेशली, तो इसमें खाना पीना बहुत सारा हम लोग रहता है, पूरा बॉडी एक हफ्ता तो खाना पीना बहुत रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे एक मतलब जो यंग जनरेशन के लिए, जो आपका मिडिल एज आदमी के लिए, या फिर जो ओल्ड एज के लिए, ये 7-8 दिन जो खाना रहेगा तो खाना खाएंगे, इसके बाद क्या करने से ठीक रहेगा? तो वही मैं बोलूँगा, जो पहला मैसेज है कि आपको प्रायोरिटी बनाना है हेल्थ को। तो हम लोग बाकी दुनिया भर का काम पूरे दिन में करेंगे, लेकिन हेल्थ को हम लोग लास्ट में रखेंगे। तो आप पहले इसको ठीक कीजिए, जो आपके माइंडसेट को ठीक कीजिए। आपके माइंडसेट में ये लिखिए कि मैं हेल्दी रहूँगा तभी मैं काम कर पाऊँगा, मैं हेल्दी रहूँगा तभी मैं पढ़ाई कर पाऊँगा। इसीलिए हेल्थ को आपको पहले प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं निकालना है, 1 घंटा निकालना है पूरे दिन में। 1 घंटा में आप हेल्दी डाइट खाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, सनलाइट लीजिए, ठीक है, स्लीप ठीक कीजिए, लेकिन आपको पहले 1 घंटे का टाइम देना स्टार्ट कीजिए। और रिगार्डिंग जो खाना पीना, जैसे त्यौहार है, त्यौहार में हम लोग खाएंगे, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि खाने के बाद कभी भी गिल्टी फील नहीं करना है, खाइए, आराम से खाइए। नेक्स्ट दिन में आप पोर्शन थोड़ा सा कम कर दीजिए। जो दूसरा खाना है, जो आप लोग जैसे चावल खा रहे हैं, चावल को थोड़ा कम खाना है। अगर मैं 2 नारियल का लड्डू ज़्यादा खाऊंगा तो अच्छा, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है, पोर्शन को बैलेंस करना है। अच्छा। तीसरा है कि थोड़ा आप नेचर के साथ आपको अटैच कीजिए। हम लोग क्या होता है, आजकल दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, 4 दीवारी में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो इमोशंस होता है वो हमेशा नेगेटिव इमोशंस आते हैं, और वो लीडिंग करता है स्ट्रेस को। तो इसलिए जब भी आपको थोड़ा सा मन उदास रहे, आप कहीं पे जाइए, सन को देखिए, बैठिए, थोड़ा नेचर को देखिए, फील कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाला है। चौथा बात है कि आपको एक्सरसाइज हर दिन एक प्रायोरिटी बनाना है। कुछ भी कीजिए, अगर आप डांसिंग करना चाहते हैं डांस कीजिए, अगर आप कहीं पे साइकिलिंग करना चाहते साइकिलिंग करना है, आपको जिम जाना है जिम जाइए, लेकिन कुछ भी एक एक्सरसाइज आपको हर दिन 30 to 45 मिनट्स करना है। और पांचवा बात है कि आपको खाना जो है घर का खाना है, बाहर का कम खाना है। तो जितना पैकेट वाला खाना कम करेंगे उतना आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, जितना होम मेड फूड खाएंगे उतना आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अच्छा, तो इसको कीजिए मेरे ख्याल से। और हैप्पी बिहू, अच्छे से लड्डू वड्डू सब खाइएगा, मतलब कंजूसी मत करिए, कंजूसी मत, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो सर अपनी आज हमारा स्टूडियो में आए हैं, आप भोगाली बिहू का सीजन चल रहा है हमारा आसाम में, एंड आपने जो सजेशन दिया है कि कैसे हम लोग अपने को फिट रह सकते हैं, खाने के बाद भी मतलब कैसे हम लोग फिट रह सकते हैं, तो इसके जो आपका सजेशन रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग जो व्यूअर्स है अभी जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मुझे लगता है कि बहुत सारे बेनिफिट उनको मिलेगा, आइडिया भी मिल जाएगा। और आपने जो सजेशन दिया है कि आपने अप्रोच किया है, किसी को अगर फ्री में भी मतलब आपका एक कंसल्टेशन चाहिए, आप देने के लिए रेडी है, किसी को कोचिंग लेना है, कोच ट्रेनर बनना है, उसके लिए भी आप अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा मैसेज आपने आज हमारे स्टूडियो में आके सबको दिया है, सो इसके लिए आपको बहुत सारा बधाई। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। तो দৰ্শকসকল আপোনালোকে গম পালে যে আজি আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত বড়োলেণ্ড বুবলি চেনেলত আমি ডক্টৰ জ্যোতিকৰ আলী, ৰিনাউন গাইনিকলজিষ্ট ফ্ৰম কোকৰাঝাৰ, আৰু তেখেত হেল্থ কোচো হয়। তো তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ আমাৰ শাৰীৰিক গঠন বা আমাৰ যিটো মানসিক বা আমাৰ দৈহিক যিটো মানে হোনা চাহিয়ে ভাল কৰিব ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো কৰিব লাগে গোটেইখিনি তেখেতে ধুনীয়াকৈ আমাক বুজালে, ক'লে। তো তেখেতৰ যিটো ছাজেশ্যনবিলাক আছে, মোৰ লাগিছে কি আমাৰ দৰ্শকবৃন্দসকলকে সকলোকে বহুত উপকাৰী হিচাপে কাম কৰিব। আৰু আজিৰ এই শ্ব'ত সকলো শ্ৰোতাবৃন্দক ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু সেইটো
আমি শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ আমাৰ এই ষ্টাৰ্টআপ ক্লাছ শ্ব'ৰ আজি সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन बे एग्जिबिशनावनो आबादारि हेन्डलुम टेक्सटाइल फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन